Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everybody. I think you all are fine. Good morning, sir. I hope so. Good morning, sir. Good morning, everybody. I hope you all are doing well at your home. आप सब लोग ठीक से होंगे? Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Can you see the board? Can you see the board? What is written? Good morning, sir. What is written on the board? Good morning is not there. Yes, sir. What is there on the board? Every drop count. Every drop counts. What is written on the Every board? drop counts. Every drop counts. What does it mean? No water. What does it mean? Every drop is important. What does it mean? What do you mean by एक बूंद को गिनना। गिनना नहीं है बेटा यहाँ पर। और हम गिनते किन चीजों को हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? हर एक बूंद को गिनना। बिल्कुल, काउंट का मतलब गिनना होता है, लेकिन हमें यहाँ बूंदों को गिनना नहीं है। और हम गिनते क्यों हैं किसी चीज को? बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. So this phrase shows importance of the drops. It shows importance of the drops. Of what? किस चीज की बूंदे important हमारे लिए? In this chapter we are going to learn about water. Every drop of the water is important for us. Is it clear? Friends? So can you guess what we are going to learn in this chapter? Every drop counts. Can you tell me the topic of the chapter which we are going to learn in this lesson? इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है? हाँ. Topic of the chapter will be water. Okay. हाँ बेटा बोलिए. कॉपी पर मत लिखिए, पहले आप सुन लीजिए मुझे. Listen to me first. जो कॉपी पर लिखना होगा वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा. कर दीजिए. Yes, sir. Okay. And students, आप लोग बहुत शोर मचा गए हो, बहुत शोर हो रहा है आप लोगों की साइड से. प्लीज बी क्वाइट. प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी क्वाइट. Okay. So students, we are going to start our new chapter, that is every drop counts. आप लोग इन शब्दों से जरूर परिचित होंगे जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं. नो वाटर नो लाइफ. बिना पानी के जीवन संभव नहीं है. और ऐसा ही एक शब्द है वाटर हार्वेस्टिंग. तो क्या हम लोग पानी की खेती भी करते हैं? यस. वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है इसकी भी अलग अलग टेक्निक है. और हमारे जो एल्डर्स थे वो इसके प्रति कितने सिंसियर थे यह आप देख पाओगे इस चैप्टर में. तो लेट अस स्टार्ट. आर यू ऑल रेडी? अगाध्या, अगाध्या, रेज योर हैंड्स इफ यू आर लिसनिंग मी. अगाध्या, सुन पा रही हो आप मुझे?
Okay, Asutosh, you are listening me. Shivangi. Shivangi. चलिए. So today we will start our new chapter, that is every drop counts, and in this chapter we will learn how every drop of water is important. Okay, as we all know that life is not possible without water, and we can save water by different methods, you know. Water harvesting is also one process. Now look at your chapter once on the page number 51. Here is your page number 51. Every drop counts. So open your textbook and look at it once. I am going to read the text for you and I will explain it. Okay. Now long ago, बहुत समय पहले की बात हटाइए. Long ago. This is a picture of घाटसी सर्ग. ये आप पिक्चर देख सकते हो बुक में, जिनके पास नहीं है. This is picture of घाटसी सर्ग. क्या है ये? और सर्ग का मतलब क्या होता है? लेक, है ना. सर्ग मीन्स होता है लेक, SAR सर्ग. और घाटसी एक प्लेस का नाम है. तो घाटसी में बनी हुई ये एक लेक है, एक झील है जो आप पिक्चर में देख रहे हो. ओके, ये घाटसी शहर में बनी हुई एक लेक है जिसकी पिक्चर आप देख पा रहे हो. ओके, नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ घाटसी सर्ग एंड हियर SAR सर्ग मींस लेक. SAR सर्ग, सर्ग का मीनिंग क्या होता है? LAKE लेक, यानी कि झील, है ना. सर्ग मीन्स क्या होता है? लेक यानी झील. किंग घाटसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड इन 650 years ago. और जो घाटसी के किंग थे, किंग ऑफ घाटसी ऑफ जैसलमेर, और घाटसी कहाँ है? जैसलमेर में. गॉट इट मेड, इन्होंने बनाया था इसको आज से 650 years ago. आज से लगभग 650 साल पहले जैसलमेर के किंग ने, घाटसी के किंग ने ये लेक बनवाई थी विद द हेल्प ऑफ द पीपल. और ये लेक कैसे बनी थी? लोगों की सहायता से. विद द हेल्प ऑफ पीपल. ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर. और ये जो लेक थी इसके चारों तरफ स्टेप्स बने हुए थे, सीढ़ियां बनी हुई थी. इस झील के चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी जो लीड करती थी वाटर तक. झील में जो पानी था वहां तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी. डेकोरेटेड वरांडाज, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर. और सिर्फ स्टेप्स ही नहीं थे, वहां पे वरामदे थे, बड़े बड़े हॉल थे, कमरे थे, और बहुत सारी दूसरी चीजें थी. बहुत सारी दूसरी चीजें उस झील पर थी. झील सिर्फ एक पानी का सोर्स नहीं था, वहां और भी बहुत सारी चीजें थी. जैसे झील के किनारे सीढ़ियां बनी थी, वहां बरामदे थे, कमरे थे, बड़े बड़े हॉल थे, है ना. पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. और लोग यहाँ आते थे. पीपल केम हियर, लोग यहाँ आते थे. क्यों आते थे? टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, त्योहारों को मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए इस झील के किनारे, है ना. एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस. तो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते थे और दूसरे जो प्रोग्राम्स होते हैं डांस के, म्यूजिक के, इनका भी सेलिब्रेशन इन जगहों पर हुआ करता था. अनमोल चौहान, डोंट रन हियर एंड देयर. आप यहां वहां मत भागो बेटा, क्लास शुरू होती है तो आप तैयार होके बैठो. क्या चीजें आपको लेकर बैठनी है? ओके, डोंट रन हियर एंड देयर, लिसन इट केयरफुली. ओके, सो
People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. इन झीलों के पास लोग आया करते थे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, डांस या म्यूजिक के प्रोग्राम्स को एंजॉय करने के लिए. चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. और सिर्फ यही नहीं, बच्चों के स्कूल भी इन्हीं घाटों पर चला करते थे. इन्हीं झीलों के किनारे बच्चों के स्कूल भी चला करते थे. जैसा कि आपने देखा था, इन झीलों के किनारे बड़े बड़े कमरे, हॉल्स, बरामदे बने हुए थे. तो इनका यूज स्कूल चलाने के लिए भी हुआ करता था. द तालाब बिलोंग टू एवरीवन. और ये जो तालाब था, जो झील थी, ये सभी को बिलोंग करता था. एक पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं थी. इट बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन. एंड एवरीवन टुक केयर. सभी लोग ध्यान रखते थे. टू कीप इट क्लीन, इसे साफ रखने के लिए. So this was the lake of Ghatsi, which was built by the king of Ghatsi, and Ghatsi is a place in Jaisalmer. This lake was very special because it has verandas, big rooms, halls, है ना, and many festivals and even dance and music programs were celebrated at the bank of this lake, in the veranda, in the rooms, in the halls of the lake, है ना. Even schools used to run. Children came here to attend their classes. Okay, so this was the importance of the lake in Ghatsi at that time. And this was your first paragraph. Now look at second paragraph. Rainwater collected in this lake spread over many miles. अब बारिश का जब पानी इसमें कलेक्ट होता था इस झील में, तो ये झील कोई बहुत छोटी नहीं थी, इतनी बड़ी थी कि कई मीलों तक ये फैली हुई थी. इट वॉज स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स. तो झील जो है बहुत बड़ी थी. रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स. और इस झील में जब बारिश का पानी इकट्ठा होता था तो वो कई मीलों तक फैला होता था. इट वॉज मेड इन सच अ वे that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. और ये झील कुछ इस तरह से बनाई गई थी कि जब ये पानी से, बारिश के पानी से भर जाती थी तो क्या होता था, its water flow down into another lake at the lower level. उस झील का पानी जब भर जाता था तो वो दूसरी झील में ट्रांसफर हो जाता था जो उससे नीचे लेवल पे बनी होती थी. So in this way, every drop of water was utilized in Rajasthan, Jaisalmer, Ghatsi with the help of this lake. है ना? When that too filled up, और जब वो छोटी झील भी दोबारा भर जाती थी, the extra water flowed into the next lake. और फिर उसके बाद वो झील जब भर जाती थी तो उसका पानी दूसरी लेक में ट्रांसफर हो जाता था. यानी लेक आफ्टर लेक, एक झील का पानी भरने के बाद दूसरी लेक में ट्रांसफर होता जाता था. दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप. और इस तरह से कुल 9 झीलें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थी, है ना. तो यू कैन सी हियर दैट व्हाट अ बेस्ट प्लान, हाउ दे हैव प्लान्ड, हाउ वेल दे हैव प्लान्ड टू यूटिलाइज एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर. बारिश से होने वाली एक एक बूंद के पानी को उपयोग में लाने के लिए उन्होंने किस तरह से झीलों की प्लानिंग की थी कि अगर एक झील भर जाए तो दूसरी झील में पानी चला जाए, दूसरी झील से तीसरी में, चौथी में, और इस तरह से 9 लेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, है ना. दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर. और इस तरह से इन झीलों का पानी पूरे साल घाटसी शहर के लोग यूज कर पाते थे, इस्तेमाल कर पाते थे. टुडे घाटसी इज नो मोर इन यूज. लेकिन आज बड़े दुख की बात है,
घाटसीसर इज नो मोर इन यूज। आज घाटसीसर यानी घाटसी की जो लेक है, जो झील है, वो उपयोग में नहीं है। ओके, आज घाटसी की झील उपयोग में नहीं है। मेनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। और इन 9 झीलों के बीच में बहुत सारी कॉलोनीज, बहुत से घर, बहुत सी बिल्डिंग्स बन गई हैं। दे हैव ऑक्युपाइड द स्पेस ऑफ द लेक। जहां पानी स्टोर हुआ करता था, आज उस पानी की जगह पर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, बिल्डिंग्स बना ली हैं, है ना। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स। आज जो है इन झीलों में पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड। और इसका परिणाम क्या होता है कि रेन वाटर बाहर नालियों में बह जाता है, पानी नालियों में बह जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है। इट इज जस्ट वेस्ट। अब बारिश का पानी जो है टोटली वेस्ट हो जाता है, उसे हम स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि जो झीलों की, लेक्स की जो प्लेस थी, वहां पर लोगों ने अपने घर बना लिए, उसको दूसरे उपयोग में लेना शुरू कर दिया है ना। सो दिस वाज योर फर्स्ट पेज। इन फर्स्ट पैराग्राफ यू सॉ दैट हाउ द पीपल ऑफ घाटसी यूज द लेक्स for celebration of the festivals, you know. Even they used it to run schools, to educate their children, you know. But nowadays these lakes are not available here, because the place is used for making buildings and houses, है ना। तो आपने देखा इस सेकंड पैराग्राफ में कि कैसे जो है फर्स्ट पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ में सिचुएशन चेंज हो गई। पहले जो 9 लेक्स आपस में इंटरकनेक्टेड थी, जिसे घाटसी के किंग ने बनवाया था पानी को स्टोर करने के लिए, वो झील कैसे हम लोगों ने नष्ट कर दी समय के साथ, है ना। नाउ थ्रू द आईज ऑफ अल-बगूनी। तो बेटा इस फर्स्ट पेज में हमने ये देखा कि झीलों की, पानी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए जब उस समय के किंग ने, राजा ने, घाटसी के किंग ने जब लेक्स को बनाया, उस समय क्या सिचुएशन थी, उस समय पानी के वो कैसे वो यूटिलाइज करते थे, है ना। और बाद में हमने क्या देखा कि सेकंड पैराग्राफ में हमने जब देखा, ये देखा कि लेक्स जो है कैसे धीरे धीरे नष्ट हो गई और उनकी जगह लोगों ने अपने घर बना लिए, जिसकी वजह से आज हम पानी की समस्याओं का सामना करते हैं, है ना। नाउ थ्रू द आईज ऑफ अल-बगूनी ऑन पेज नंबर 52। अब आइए आप जगह पेज नंबर 52 पर देखिए, थ्रू द आईज ऑफ अल-बगूनी। अब अल-बगूनी की आंखों से देखा हुआ जो उस समय का सीन था, वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। लेट अस सी व्हाट ही हैज रिटन। अल-बगूनी ने क्या लिखा है। मोर देन 1000 years ago। ये आज से हजार साल पहले की बात है। मोर देन 1000 years ago, आज से लगभग 1000 साल पहले की बात है। अ ट्रेवलर केम टू इंडिया। एक ट्रेवलर, एक यात्री आया था भारत में। एंड हिज नेम वाज अल-बगूनी। और उस ट्रेवलर का नाम क्या था? अल-बगूनी। तो हु वाज अल-बगूनी? अल-बगूनी वाज अ ट्रेवलर हु केम टू इंडिया नियर अबाउट 1000 years ago। आज से लगभग 1000 साल पहले, है ना, अल-बगूनी इंडिया में आया था। द प्लेसेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। और ये जो अल-बगूनी थे, ये कहां से आए थे? उज्बेकिस्तान से। ही केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान। So name of the person who visited India was Al-Biruni, Albiruni, and he came from Uzbekistan, Uzbekistan, है ना। So Al-Biruni came from Uzbekistan, and who was Al-Biruni?
He was a traveler. So more than 1,000 years ago, a traveler came to India and his name was Al-Biruni. The place that he came from is now called Uzbekistan. और वो जिस जगह से आए थे उसको हम आज कहते हैं उज्बेकिस्तान. आज उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? उज्बेकिस्तान. Al-Biruni carefully absorbed and noted down the details of all that he saw. अब यहाँ अल-बिरूनी ने इंडिया में आकर क्या किया? उन्होंने सभी चीजों को बहुत ही माइन्यूटली, बड़े ध्यान से, बड़ी सावधानी पूर्वक ऑब्जर्व किया और जो कुछ भी उन्होंने इंडिया में देखा उसको अपनी डायरी में वो लिखते गए, है ना? उसको वो अपनी डायरी में लिखते गए. नाउ सी, देखिए समय के साथ उनकी डायरी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट बन गई. उनकी डायरी जो है हिस्ट्री बन गई. तो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन आवर डायरी, है ना? अगर हम भी अपनी डायरी मेंटेन करें तो समय के साथ ये काम आ सकती है. So Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. और अपनी डायरी में उन्होंने विशेषकर उन चीजों को मेंशन किया जो उन्हें लगता था कि उनकी कंट्री में ऐसा नहीं था, जिनको देखकर उन्हें लगा कि वो उनके यहाँ से बहुत अलग थी. ऐसी चीजों को उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया, लिखा, है ना? जो चीजें उन्हें विशेष लगी, स्पेशल लगी, ऐसी चीजों को अल-बिरूनी ने, जो उज्बेकिस्तान से आए थे, उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया, है ना? Here is part of what he wrote about the ponds of the time. और उन्होंने उस समय के तालाबों के बारे में, झीलों के बारे में अल-बिरूनी ने जो कुछ भी लिखा अपनी डायरी में, उसकी कुछ लाइनें आपकी टेक्स्ट बुक में है. It is in blue part. It is in blue color. If you have books, you can see here. The lines written by Al-Biruni in his diary is given in your textbook. It is colored blue. है ना? हाईलाइट किया गया आपकी टेक्स्ट बुक में उसको ब्लू कलर से. Let us read it. देखते हैं अल-बिरूनी ने अपनी डायरी में वहां के पॉन्ड्स के बारे में, उस समय जो इंडिया में पॉन्ड्स थे उनके बारे में अल-बिरूनी क्या लिखते हैं. The people here are very skilled at making ponds. Now see, आज से 1000 years ago, 1000 साल पहले जब अल-बिरूनी भारत आए तो उन्होंने क्या लिखा? Peoples of India are very skilled in making ponds. लोग यहाँ पे बहुत कुशल हैं तालाब बनाने में. ये अल-बिरूनी के वर्ड्स हैं, है ना? My countrymen would be surprised to see them. और मेरे देशवासी, my countrymen would be surprised to see them. बड़े चकित होंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे उन तालाबों को देखकर. ये अल-बिरूनी के वर्ड्स हैं. They pile up huge rocks. वो बड़े बड़े पत्थरों का ढेर लगा देते हैं. They pile up huge rocks. Pile means ढेर लगा देना. अब अल-बिरूनी यहाँ क्या लिखते हैं? People of India pile up huge rocks. भारत में रहने वाले लोग बड़े बड़े पत्थरों का ढेर लगा देते हैं. क्यों? And join the iron rods to build चबूतराज. और फिर उनको जोड़ देते हैं आयरन रॉड की सहायता से चबूतरे बनाने के लिए. चबूतरे कहते हैं हम रेज्ड प्लेटफॉर्म्स को, जो जमीन से कुछ ऊपर लेवल पे उठा हुआ हिस्सा होता है, उसको हम चबूतरा या प्लेटफॉर्म कहते हैं, है ना? सो ऑल अराउंड द लेक. और ये ऐसा काम वो झील के चारों तरफ करते थे. चारों तरफ झील के वो लोग चबूतरे बना दिया करते थे. एंड बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस. और इन चबूतरों के बीच में लंबी से लंबी सीढ़ियां बना देते थे. गोइंग अप एंड डाउन, जो पानी तक नीचे जाती थी और वही से वापस प्लेटफॉर्म तक ऊपर भी आती थी. द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट. कई बार जो स्टेप्स होती थी वो पानी तक जाने के लिए अलग बनाई जाती थी और वहां से वापस आने के लिए अलग सीढ़ियां बनाई जाती थी. जैसे आज हमारे यहाँ 4 लेन सड़कें बनती हैं, एक साइड से केवल जाना है, दूसरी साइड से केवल आने के लिए. इस तरह से हमारे यहाँ लेक्स
झीलें, पॉन्ड्स बनाए जाते थे, जहां पर लोग पानी के लिए एक तरफ की सीढ़ी को पकड़ के जाते थे और लौटते समय दूसरी सीढ़ी को यूज करते थे, दूसरे स्टेयर्स को यूज करते थे। सो देयर इज लेस क्राउडिंग, और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वहां पर तालाबों के पास, झीलों के पास बहुत ज्यादा क्राउड ना हो, बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, है ना। जैसा कि हम आज हाईवे पे देखते हैं, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए हम लोग 4 लेन सड़कों का यूज करते हैं। इन द सेम वे दे यूज टू मेक different stairs, different steps for going down and coming up from the water level, you know, so that the area of the pond, area of the lake should not be overcrowded. उसको ओवरक्राउड होने से बचाने के लिए ऐसा वो लोग किया करते थे। Now today when we study history, और आज जब हम उस इतिहास को पढ़ते हैं, अल-बिरूनी के लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं, we can learn a lot about those days. हम उन दिनों के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। अल-बिरूनी ने जो कुछ भी हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे इंडिया को देख करके जो कुछ भी अपनी पेन से लिखा, उसे पढ़ करके आज हम उस समय के बारे में जान सकते हैं कि इंडिया में रहने वाले लोग कितने कुशल थे, कितने स्किल थे पॉन्ड्स, लेक्स बनाने में, है ना। We can learn a lot about those days from the writing of Al-Biruni, and this stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. और यहाँ जो आप स्टैम्प देख रहे हो ऊपर, ये 1973 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया गया था, जिसमें अल-बिरूनी की पिक्चर बनी हुई है। कैन यू सी दिस स्टैम्प? हाँ, ये स्टैम्प आपको दिखाई दे रहा है, डाक टिकट। तो हम लोग अक्सर अपने देश की इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए स्टैम्प्स को रिलीज करते हैं। अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने भी एक नया स्टैम्प रिलीज किया है, जिसमें रामायण की राम और रावण की जो स्टोरी है उसकी पिक्चर्स उसके ऊपर प्रिंटेड हैं, है ना। अगर आज के न्यूज़पेपर से गए होंगे, आपने देखा होगा, तो उसमें ये पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। ओके, तो इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ what Al-Biruni has written in his diary. Okay. Now, observe and find out. Look at the area around your school. अब आपको क्या करना है? आप अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के आसपास के एरिया को जरा ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए। Are there any fields, farms, पक्का रोड्स, ड्रेन्स, एटसेट्रा? ये सारी चीजें आपको अपने आसपास देखने के लिए मिल जाएंगी। फील्ड्स, खेत, फार्म्स, है ना, पक्के रोड, पक्की सड़कें, ड्रेन्स, नालियां, ये सारी चीजें हमें आसपास कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएंगी। इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट? और आप ये भी देखिए कि आपका एरिया कैसा है, क्या वहाँ स्लोप है, ढलान है, पथरीला है, या फिर समतल है। जनरली we have flat area in our region. Think what will happen here when it rains. और आप जरा सोचिए कि अगर यहाँ पर बारिश होती है तो उसका पानी कहाँ जाता है। आप अपने घर पे ही देख लीजिए, हमारे घर की छतें बिल्कुल पक्की हैं, घर की छतों पे जो भी बारिश होता है वो पानी पाइप से होता हुआ सीधा नालियों में बह जाएगा। इट इज गोइंग टू वेस्ट। We are not going to utilize this water, है ना, which was planned to use in Ghatsi Lake by the king of Ghatsi near about 700 years ago. आज से 700 साल पहले वो लोग इतने समझदार थे कि वो बारिश की एक एक बूंद को इकट्ठा करके उसको अपने उपयोग में ले आते थे। आज हम बहुत समझदार हैं उनसे भी ज़्यादा, लेकिन हम क्या करते हैं? वी आर वेस्टिंग वाटर। आज हम पानी के ड्रॉप्स की बात छोड़िए, हम नदियों को वेस्ट कर देते हैं, नदियों में कचरे फैला देते हैं, है ना। सो थिंक व्हाट विल हैपन व्हेन इट रेन्स एंड वेयर ऑल द रेन वाटर गो। और आप ये भी बताइए कि आपका जो यहाँ जो बारिश होती है उसका पानी कहाँ जाता है? इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स।
गड्ढों में जाता है, पाइपों में जाता है, या फिर नालियों में चला जाता है। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉयल, और क्या कुछ पानी आपके यहाँ मिट्टी में भी सूख जाता है? तो बहुत पॉसिबल है, ऐसा हो सकता हो। सो स्टूडेंट्स, now you have seen that how the people of Ghatsi used lakes to utilize every drop of water, है ना? And what we have done, we are wasting nowadays enough water, है ना? आज हम पर्याप्त मात्रा में पानी को नष्ट कर देते हैं, और वो भी उस सिचुएशन में जब बहुत से लोगों को पीने की पानी भी साफ मिल नहीं पाता है ना? So students, look at the next topic, drop by drop. Here is our next topic, that is drop by drop. But before going through this topic, we should once communicate with each other to see if you have any problem. So students, whatever we have learned, if there is any problem, you may ask. Ashutosh? Ashutosh? Excuse me, sir. Yes, बोलो बेटा। हाँ हर्षित, आप कुछ कह रहे थे? सर ये 6th चैप्टर है ना? हाँ, it is 6th chapter. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। बेटा हो सकता है फिर आपके यहाँ थोड़ी सी सर नेटवर्क बहुत कम आ रहा है। कम आ रहा है। सर बहुत धीरे आ रहा है। यस सर। मे बी ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। हो सकता है कि आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, यहाँ पे सर कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो अगर आपके पास कोई डाउट नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे। आई एम गोइंग टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा, ओके? लेकिन जिनको आंसर पता हो वो हैंड्स अप करेंगे, या चलिए मैं आपका नाम बोलूंगा, जिनको पता हो वो बोलेंगे, ठीक है? सर लेकिन मैं 6th चैप्टर स्टार्टिंग से नहीं स्टडी किया हूँ। कोई बात नहीं, अब हम रिवीजन करेंगे। आपने लेट ज्वाइन किया है। यस सर। आपने, कोई बात नहीं, तो जितना सुना आपने वो ठीक है, उसके हिसाब से आप आंसर देना, और हम रिवीजन करेंगे तो जो लोग लेट आए हैं उनका भी कवर अप हो जाएगा, है ना? तो चलिए, ओके सर। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्ग? SAR, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्ग? सर मीन्स लेक। लेक, है ना? वेरी गुड। यस सर। तो सर्ग का मीन्स क्या होता है? लेक। ये SIR सर्ग नहीं है, SIR सर्ग मीन्स श्रीमान, ये SAR सर्ग है ना? यस सर। ओके, और घाटसी सर्ग का मतलब क्या होगा? सर क्या? घाटसी सर्ग। सर आवाज फंस रही है। घाटसी सर्ग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घाटसी सर सर्ग? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आवाज इज नॉट क्लियर। आई एम लिसनिंग यू वेरी क्लियरली। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट सुन पा रहा हूँ। आराध्या बता सकती हो घाटसी सर्ग किसको कहते हैं? लेक। सर हाँ, एक ऐसी झील जो घाटसी घाटसी में बनी थी। नॉट क्लियर। घाटसी एक प्लेस का नाम है। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। लिसन टू मी, घाटसी एक प्लेस का नाम है। डोंट डिस्टर्ब। यस सर। घाटसी एक प्लेस का नाम है। यस सर। और वहाँ जो झील बनी थी उसको हम कहते हैं घाटसी सर्ग। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर आ रही है। बेटा अब मैं किसकी बात मानूं? आप एक जन कहोगे कि आ गई है, दूसरे कहोगे कि नहीं आ गई है। तो check your net, check your connectivity and try to change your place. Okay, so घाटसी सर्ग मतलब घाटसी स्थान पे बनी हुई झील। ओके, एंड who built घाटसी लेक? Who built घाटसी लेक? घाटसी झील किसने बनवाई थी? घाटसी झील जो थी वो किसने बनवाई थी? हाँ, Who made?
घाटसी लेक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदर्श, हु मेड घाटसी लेक? सर बहुत शोर हो रहा है। अब मैं आपको फिर बोलने नहीं दूंगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। एक एक करके पूछिए। चलिए बताइए अभिमन्यु, हु मेड घाटसी लेक? अभिमन्यु नहीं बोलोगे? कौशल यादव, अपने आप को म्यूट क्या हुआ बताओ। वैष्णवी सिंह, कैन यू आंसर? चलिए आप नहीं बताते तो मैं बोलता हूँ। किंग ऑफ घाटसी, किंग ऑफ घाटसी, जो घाटसी के किंग थे उन्होंने लेक बनाई थी। हाँ, किंग ऑफ घाटसी मेड दिस लेक, है ना? और हाँ, एंड हाउ वाज दिस लेक यूज्ड बाय द पीपल? इस लेक का यूज कैसे करते थे उस गांव के लोग, घाटसी साई के लोग इस लेक को कैसे यूज करते थे? हाँ, दे ऑल्सो सर एक यूज्ड से इट। दूसरे में पहुंचाना, पानी पानी भर जाए तो। हाँ, 9 लेक्स वर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। नाउ Yes, 9 sir. झीलें जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी पानी को स्टोर करने के लिए। एंड दे सर एक ऑल्सो से यूज दूसरे द में ज्यादा लगे, स्पेस सर एट द दूसरे में बैंक ऑफ दिस लेक फॉर सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। इस झील के किनारे के बने हुए स्पेस को, जो बरामदा थे, जो बड़े बड़े रूम्स थे, हॉल थे, उनका यूज वो सेलिब्रेशन के लिए भी किया करते थे। यस सर। है ना? याद है आपको? यस सर। और इन झीलों के किनारे क्या बना हुआ था? सीढ़ी। सीढ़ियां बनी थी ना, और सीढ़ियों के किनारे फिर बरामदे बने थे, बड़े बड़े हॉल बने हुए थे, रूम्स थे। इन कमरों में बच्चे पढ़ने के लिए भी आया करते थे, स्कूल चला करते थे। Isn't it? ऐसा है कि नहीं है? आदित्य, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा बहाना है, मुझे आपकी आवाज सुनाई देगी, आपको नहीं सुनाई देता है। सुनाई दे रही है आवाज। हाँ, Sir, your voice is not clear. Sir, your ठीक आ रही है आवाज। हाँ, Yes, तो sir, आप clear। आगे देखिए। तुम्हारा नेटवर्क है ना? Now, who was Al-Biruni? Who was Al-Biruni? Al-Biruni कौन थे? Sir, your traveler. Yes. Traveler. Yes, he was a traveler. And from where he came? No, sir. From where did he come? Do you remember the place? Uzbekistan. And what has he written about the people of Sir, your India? voice is not clear. भारत के लोगों के बारे में उन्होंने क्या लिखा था अपनी डायरी में? What has he written? हाँ? Sir, about the people here are very skilled at making forms. Yes. My countrymen would be surprised to see them. They Yes. pile up rocks and join them with iron rods to build हाँ, Chabutra's very good. waste platforms. तो उन्होंने भारत के लोगों के बारे में बता लिखा ले था कि यहाँ के लोग बहुत कागे कुशल हैं झीलें बनाने में, और वो इतनी अच्छी तरह से झील बनाते हैं कि वहाँ के लोग, उनके देश के लोग उन्हें देखकर निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, है ना? So this was a part of our chapter which we have done today. Now, if you have any doubt, you may ask. Otherwise, it's time to over now. Have a nice day. Thanks. Thank you, sir. Thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, your voice is not clear.